Hello everyone, welcome to my channel VD's Shiksha and I am your mentor Vandana Devrukkar. Today's topic is coordination from chapter number 1, Nature and Significance of Management. Now what is coordination? Coordination means सबको एक साथ एक हार्मनी में, if you all are doing some work और सब एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कोई भी वर्क जो है वो accomplish नहीं हो पाएगा. So what is the meaning of coordination? To bring coordination and harmony among all the different functions carried out by different departments in the business unit is called coordination. Means whichever the departments are working for management work, for your business work, they all should work in harmony and they should coordinate with each other. For example, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन जो हेड है उसको पता नहीं है कि सेल्स का जो वर्क है वो कैसा चल रहा है, मार्केटिंग का कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर परचेजिंग का कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन से नहीं है, सेल से नहीं है, तो वो कोई भी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कोऑर्डिनेशन या हम बोल सकते हैं कि उसका कंसाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता है. नाउ लेट अस नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. वेरी फर्स्ट इज PC. Now what is this PC? See, characteristics are given in your textbook in a sentence form. So I had arranged them as per keywords. मैंने उसमें से keywords निकाले हैं. PC. P means planning and C means controlling. So what is this PC? Means coordination. This coordination helps from planning to controlling. This you have already learned in POSDC. Planning, organization, staffing, directing and controlling. So it is totally helpful, means these all activities carried out in management from planning to controlling, in that coordination should be there. Second thing is every level. Coordination is needed in all the levels of management. Third point is effective communication. मीन्स अगर यहाँ से हमने किसी को कोई मैसेज सेंड किया, सामने से अगर हमको मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तो मीन्स इट्स अ वन वे. सेम वे कोऑर्डिनेशन में भी जितनी भी हेड्स डिपार्टमेंट्स है या जो भी वर्क हो रहा है उन सब के बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है. देन कम्स नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन. ऑल डिपार्टमेंट्स, all different levels of management working together, so they should work in a cooperative way. सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे तभी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाएगा. एंड फिफ्थ इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम utilization of resources. So whichever resources business is using, that resources may be used in a best way if these all things are coordinated together. Third thing is the soul of management. That's why coordination is called the soul of management. It is called the आत्मा of management. जैसे हमने previously read किया था POSDC के लिए, planning is called the brain, organization is called the structure, staffing is called the arms and legs, directing means to guide and controlling means to control whatever going on from planning to directing. अगर कोई भी प्लान यहाँ पे इशू है तो कंट्रोलिंग उसको इफेक्टिव वे में कंट्रोल कर सकता है. द सेम वे मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का पोजीशन क्या है? सो इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ मैनेजमेंट, आत्मा ऑफ मैनेजमेंट. तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाउ मैनेजमेंट इन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन वर्क एज अ सोल, या एक्सप्लेन coordination as soul of management. So in that you can use this definition and moreover these characteristics are very much helpful for completing this answer. Understood? Second important point is importance. What are the importance of coordination? First is POSDC effective, means all the levels or we can say all the other functions of management can be effective only if there would be a coordination between this POSDC, planning, organizing, staffing, directing and controlling. Second thing is no work remains incomplete or no duplication of work. See, for example, सब लोग अपना अपना वर्क कर रहे हैं, सब लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के दिस डिवीजन ऑफ वर्क हुआ है तो सबका काम परफेक्टली होगा, कोई भी वर्क इनकम्प्लीट नहीं रह सकता और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस बिल्कुल नहीं है.
क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाले ने क्या किया, उसको पता है कि उसके पास वाले ने वर्क क्या किया। इससे सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। थर्ड इज मेंटेन्स हार्मनी। हार्मनी का मतलब वननेस की एक फीलिंग होती है, सब लोग एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। फोर्थ थिंग इज बैलेंस बिटवीन ऑर्डर एंड टाइम। नाउ व्हाट इज दिस ऑर्डर एंड टाइम? अगर सारे हेड्स या सारे डिपार्टमेंट्स या ऑल फंक्शंस जो भी हो रहे हैं वो अगर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होंगे तो जो भी कंसाइनमेंट लिया है, जो भी ऑर्डर लिया है बिजनेस पर्पस के लिए या किसी कंपनी ने अगर कोई ऑर्डर लिया है तो उसका ऑर्डर एंड टाइम जो है वो परफेक्ट वे में कंप्लीट हो सकता है। नाउ व्हाट इज ऑर्डर एंड टाइम? ऑर्डर एंड टाइम इज जो ऑर्डर लिया है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होने के चांसेस है जब सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। देन कम इजी मैनर। बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन सारा वर्क जो है वो कैसे हो जाएगा? इजी मैनर में। ऑल आर डूइंग देयर वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क इज देयर, everyone knows what kind of work they have to do. Then sixth is accomplishment of pre-decided objectives. Accomplishment of pre-decided objectives means completion of pre-decided objective. Now what is the objective of business? It is profit. तो हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अकम्प्लिश हो सकता है? जब सारे फंक्शंस या सारे डिपार्टमेंट्स जो भी लोग उसको काम उसके साथ कर रहे हैं वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट रहेंगे, देन ओनली आवर ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। In order to manage the business, they have to manage all these functional areas of management. So there are 4 types of functional area of management. Which are they? First is marketing management, second is human resource management, third is financial management, and fourth is production management. Very first is marketing management. Now what is this marketing management? You might be knowing this क्योंकि ये तो बहुत कॉमन वर्ड हो गया है मार्केटिंग। Now what is this marketing? Means प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में लाया जाए, किस तरह से उसका लॉन्चिंग होगा, उसका एडवर्टाइज, उसका शेप, साइज, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट। और आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस अगर बिजनेस को बेयर करने पड़ रहे हैं तो वो किसके पीछे करने पड़ते हैं? मार्केटिंग के पीछे। लेट अस स्टार्ट एंड नो व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। मार्केटिंग क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करता है। सेकेंड थिंग वो क्या करता है? डिसाइड नेसेसिटी ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या चाहिए, कब चाहिए और किस तरह से चाहिए, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये एनालिसिस जो है वो कौन करता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। मार्केटिंग रिसर्चेस distributive methods, sales, promotions, storage, insurance, etc. things are included in the marketing management. Like market research की जाती है कि कौन से प्रोडक्ट का किस तरह से मार्केट में लॉन्चिंग होना चाहिए, मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, उसके हिसाब से कैसे हम उसका सप्लाई करें, उसका डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेल्स, उसका प्रमोशन किस तरह से करना है, किस तरह से प्रोडक्ट को हमको ज्यादा से ज्यादा फेमस बनाना है, स्टोरेज, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, what this marketing management is actually doing. So it is these functions are 4 functions: product or product mix. Now what is product mix? Means प्रोडक्ट में बहुत सारे वेरिएशंस एंड चेंजेस लाए जाते हैं वक्त के साथ। यू माइट बी नोइंग इनिशियली बहुत सालों पहले, आई थिंक सो मुझसे भी पहले, लक्स सोप जो आता था उसका शेप डिफरेंट था, अंदर का उसका जो फीचर है वो डिफरेंट था, उसकी जो मार्केटिंग के लिए जो हीरोइंस को यूज किया जाता था, सेलिब्रिटीज को यूज किया जाता था वो डिफरेंट है, जो मोर डिमांड में होंगे उसी सेलिब्रिटी को यूज किया जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट होता है उसका कलर, साइज, शेप, वेट, पैकिंग एक्सेट्रा, बहुत छोटी छोटी चीजें उसके अंदर की यहाँ पे देखी जाती है और उसमें चेंजेस लाए जाते हैं एज पर द ट्रेंड इन द मार्केट। सेकेंड थिंग इज प्राइस। नाउ सेल्स की पॉलिसी क्या होगी, कैसे प्राइस को हम लोग को डिसाइड करना है, मीन्स विच एवर प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस, हाउ द प्राइस विल बी डिसाइडेड।
इट्स ऑब्वियस कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से उसका डिसीजन होता है, बट ये भी देखना है कि मार्केट में कॉम्प्लीमेंट्री और उसका सब्सिडरी प्रोडक्ट किस तरह से कम्पीट कर रहा है. सो सेल्स पॉलिसी, credit policy, discount, wholesale, retail, in which way the price would be there. Means wholesale price is different, retail price is different, discount rate price is totally different. Third thing is distribution. प्रोडक्ट बन गया है, उसका सब कुछ डिसाइड हो गया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, आप तक और मुझ तक कैसे पहुंचाना है. सो डायरेक्ट सेलिंग करना है, होलसेल और रिटेलर. दीज आर द मीडिएटर्स जिनकी वजह से डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचता है. देन कम्स प्रमोशन. नाउ व्हाट इज प्रमोशन? प्रोडक्ट मार्केट में तो आ गया है, बट किसी को पता ही नहीं है, किसी को उसका नॉलेज ही नहीं है, तो एवरी नाउ एंड देन इसकी एडवर्टाइजेस आती है, होर्डिंग्स लगती है, बार बार हमारे फेसबुक में, सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है. कंटिन्यूसली ये चीजें हमारे दिमाग पे हैमरिंग करती रहती है, हमको रिकॉल करती है कि हाँ हमने ऐसा प्रोडक्ट देखा था. So this is called advertisement, publicity and salesman. Continuously salesman, publicity, ये सब advertisement चलती रहती है और इस प्रोडक्ट का प्रमोशन चलता रहता है. So this is the marketing management. Please take the screenshot. Second functional area of management is human resource management, HRM. Now what is this human resource management? As you all know that human resource are the live asset for any business. As we have already discussed about staffing, POSDC. So staffing means arms and legs. So these human resource management means employees are called the live asset for any business. Same way जैसे दूसरी चीजें बहुत important है, this is also very important as you have already learned in factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. So labor is very much important, employees are very much important. It is necessary to take care of them. Initially हम लोगों ने वहां पे पढ़ा है, उर्विक ने बोला है, you take care of your man will take care of your business. मीन्स या रेस्ट ऑफ द ऑल थिंग्स. मीन्स अगर आप अपने जो पर्सन्स हैं, पर्सोनल्स, एम्प्लॉयज, लेबर्स, उनका आप केयर लेंगे तो वो आपके बिजनेस का केयर लेंगे. मीन्स विद डेडिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन से वो और भी बूस्ट होंगे और बेस्ट वे में काम करेंगे. सी टेक केयर ऑफ देम. इट इंक्रीजेस देयर एफिशिएंसी. और वो क्या करता है, इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में बैठे हो, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है और अगर आपको मैम जो है या आपके जो सर हैं वो शाबाशी दे रहे हैं तो आपका जो एंथुजियाज्म है वो कितना बूस्ट हो जाता है. तो सेम वे लेबर्स एंड एम्प्लॉयज, जो स्टाफ आपके अंडर में काम कर रहे हैं और अगर आप उनका ध्यान दे रहे हो तो उनको क्या मिलेगा, बूस्टिंग मिलेगा. अंडरस्टूड. देन कम्स फंक्शंस. Now what are the functions of human resource management? Very first is selection, training, promotion and direction. ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें बिजनेस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो ये सारे कंपनीज चला रहे हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एम्प्लॉयज को ले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पोजीशन के लिए क्लर्क की जरूरत है, कहीं अकाउंटेंट की जरूरत है, तो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स दे हैव टू फॉलो. सो दे हैव टू सिलेक्ट, दे हैव टू गिव ट्रेनिंग टू देम. एज पर ट्रेनिंग उनका अगर एफिशिएंसी अच्छा है, उनका वर्क अच्छा है, दे विल बी प्रमोटेड एंड इफ सम इश्यूज आर देयर दे विल बी डायरेक्टेड ऑल्सो. Second thing is individual object to business. Individual object to business objectives. Now what is business objective? What is the objective of business? Business objective is profit. So जो इंडिविजुअल है मीन्स जो पर्सनल है, एम्प्लॉयज है, उनका खुद का ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा होना चाहिए. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है मीन्स ओनर का, बट जो वहां पे वर्क कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोर एंड मोर सैलरी, मोर एंड मोर इंसेंटिव्स. ये सारी चीजें उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो मीन्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. तो मीन्स दोनों इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोरिलेटेड है. आपका ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट करना है तो उनको पता है कि भाई अगर हम इनका प्रॉफिट होगा तो हमारा भी प्रॉफिट ही होगा. देन कम प्रोवाइड्स. अब HRM में क्या किया जाता है, जो भी पर्सनल, जो भी एम्प्लॉयज, विच एवर द लेबर्स आर कमिंग,
To them training is being given, and because of this training development is there among the employees. उनका development होगा तो business का भी development होगा. Then comes to manage the employees. Employees को manage कैसे करना है? It's really a headache. बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, उनसे काम लेना इट्स नॉट एन इजी टास्क. तभी तो वुड्स एंड ओडरल ने बोला है इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स. दूसरों से काम निकलवाने की कला. दैट इज ओनली द मैनेजमेंट. मीन्स टू मैनेज द एम्प्लॉयज. तो एचआरएम क्या करता है? सारे एम्प्लॉयज को सही ढंग से उसको मैनेज करने का काम करता है. देन कम रिड्यूस लेबर टर्नओवर. अगर आप अपने पर्सनल्स का अच्छे से ध्यान दे रहे हो, उनका केयर ले रहे हो, उन लोगों को भी मजा आ रहा है, उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है, तो आपका लेबर टर्नओवर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. हाउ? वो लोग एवरी नाउ एंड देन जॉब छोड़ के जाएंगे नहीं. नए नए लोगों को लेना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट इट्स नॉट एन इजी टास्क. ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है. सो अगर आप अपने पर्सन्स का ध्यान दोगे तो वो सालों साल आपके साथ जॉइंटली वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा. देन 6th इज बूस्ट एंथुजियाज्म. और एचआरएम की वजह से क्या होता है? आपके एम्प्लॉयज का जितना आप ध्यान दोगे उनका एंथुजियाज्म और भी बूस्ट होता है, और इसी बूस्टिंग का आपके बिजनेस को भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है. अंडरस्टूड? प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट. Next functional area of management is financial management. Finance is called the lifeblood. Without finance, no business can run. कोई भी बिजनेस हम चला सकते नहीं है. इवन मुझे यहाँ से बाहर जाना है तो भी विदाउट फाइनेंस या विदाउट कैपिटल और विदाउट मनी आई कांट वॉक अ सिंगल किलोमीटर. मीन्स मुझे जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए. ऐसे तो हम वॉकिंग में जा सकते हैं. ओके. देन विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और वी कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो विच फंक्शंस दे आर डूइंग? एक्विजिशन. एक्विजिशन मीन्स मनी को कहाँ से एक्वायर करना है. मनी प्लांट होता है और उस पर कभी पैसे ग्रो होते नहीं है. उसको एक्वायर करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, और कहाँ से लेना है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज पैसा तो आ गया, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, बिजनेस में उसको किस तरह से यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, कौन से डिपार्टमेंट को ज्यादा देना है, कहाँ पे कम, ये सारी चीजें डिसाइड होती है यहीं पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. Third thing is allocation of capital. Now, which department should be allocated, how much money, at what time? This type of decisions are being taken by the department that is called financial management. So, this is the function of financial management. So, what are the functions? Very first is financial need. They have to go through that what are the needs of the business and how they can fulfill these needs with the help of finance, or which kind of finance they need, when, why and how. Second is financial plan. They have to prepare the plan. कब, कैसे, कहाँ से फाइनेंस की जरूरत होगी, कौन से डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंस चाहिए, ये सारा प्लानिंग से होगा. ऐसे ही पैसे लगा दे रहे हैं तो इट्स टोटली वर्थलेस, उसका कोई भी यूज होगा नहीं. Third thing is prepare budget. So we have already learned about the triangle shaped levels of management. In that second level is middle level of management. वहाँ पे जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो हमेशा इस बजट को बनाते हैं और टॉप लेवल को पास ऑन करते हैं कि किस डिपार्टमेंट को कितना बजट चाहिए. प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, परचेज, दिस ऑल काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स. Fourth thing is allocate funds. This financial management allocate the funds to different departments so that they can work smoothly. Next thing is sources of acquisition. Means कौन से sources से उसको acquire करना है. Shares, debentures, financial institution, bank loan. These all are the sources for acquiring the finance from the market. Okay, credit worthiness. Then comes 6, procedure for acquiring. मैं किसी के पास जाऊंगी और मैं बोलूंगी मुझे पैसे चाहिए, so is it possible? कोई भी ऐसे ही पैसे दे देगा? No, some procedures we need to follow. अगर हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसका भी हमको प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा. सेम वे इफ वी आर इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स, द सेम वी हैव टू गो थ्रू अ स्पेसिफिक
system, or we can say the procedure. Then come funds utilized, keep control. Means wastage should not be there. Factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. So capital. So capital जो fund है उसका utilization कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसका वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, उस पर भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा. देन कम्स फाइनेंशियल पॉलिसी. व्हाट इज फाइनेंशियल पॉलिसी? पॉलिसी क्या है? तो फाइनेंस जो है किस तरह से आ रहा है, कब हमको लाना है, उसका टाइमिंग क्या है, उसकी कौन सी पॉलिसीज है, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. दिस ऑल आर डिसाइडेड अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देन कम्स प्लान टैक्सेस. This is an expenditure. If you are running business, so you have to pay taxes. So ये टैक्स को पे करने के लिए भी हमको किसकी जरूरत है? फाइनेंस की जरूरत है. So we have to plan the taxes to meet this burden or to meet the expenses. Last is arrangement of assets. Assets जो भी हम लोग खरीदते हैं, चाहे वो स्टेबल हो या जिसको हम बोल सकते हैं मूवेबल हो, अगर ऐसे कोई एसेट्स हैं तो उनका अरेंजमेंट कब करना है, उसमें कितना फाइनेंस डालना है, किस तरह का एसेट लेना है कि मिनिमम फाइनेंस, कैपिटल कम से कम यूज हो और बेस्ट वे में उसका यूज हो पाए, ये सारा वर्क करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इन शॉर्ट आपको ये देखना पड़ता है यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ये फंक्शन करता है कि मनी को, फाइनेंस को, इस ब्लड को कंटिन्यूसली हम फ्लो में रखें, उसका फ्लो कभी रुकना चाहिए नहीं. सेम वे हमारी बॉडी में अगर ब्लड रुक जाएगा, कहीं पे उसका कुछ क्लॉटिंग आता है तो इट विल इफेक्ट अवर हार्ट. द सेम वे यहाँ पे भी अगर कहीं से थोड़ा भी ब्लड को पहुंचने में प्रॉब्लम होगा तो पूरे बिजनेस को इफेक्ट हो सकता है. अंडरस्टूड? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. लास्ट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट. Now what is this production management? Whichever the product is produced, that the managers or the CEO or the board of directors, the departmental heads, they have to manage the production. When we have to produce, how we have to produce, why we have to produce, such kind of questions arises in the mind of departmental heads, or we can say in the mind of production head. So what is this production? Production planning, deciding programs, maintaining coordination, direction and keeping control. Production planning means how this production should be done, when should be done, why should be done. Then deciding programs, which kind of program should be included to produce a specific kind of products. Then come maintaining coordination, because production management is linked with other management also. Marketing, human resource, financial, sales, these all are correlated with each other. So they need to coordinate with this all other type of managerial activities. Then direction and keeping control means production management, they have to give the direction, how to produce, when to produce and keeping control. It's not like that कि बहुत सारे pieces बना के रख दिए but demand is not there. So according to demand, production should be done. Okay, continuously इसको store करेंगे. So every day new trend is there, new fashion is there. So it would be old fashion. So they have to decide when to produce, why to produce and how to produce. What are the functions of production management? Very first is production plan. They have to plan the production, the way they will produce the product. That planning should be prepared priorly. Second thing is production research. Many new technologies are being used, or we can say every day new things are coming in the market. So for production also research should be done, from where the raw material should be brought, how it should be produced, the way we have to decide, means this production management has to decide the way in which the cost should be minimum and the wastage should be minimum. Third is product development. This is also known as product mix. They have to every now and then they have to change the size, color, shape as per the taste of customers. Then comes technology and machinery. Which kind of machinery should be used? Yeah, what kind of technology should be used to produce a specific product?
Then come selection of location. Production should be at that place so that the easy transportation or easy communication is available, or we can say raw material will be available easily to the specific location of production. Then come estimate material and needs. What this production management is doing, they are estimating the material, that how much material will be required, at what time it's going to be required, and what are the needs of the business as per they has to produce some or the other products. Then come production control. Now what this production control is doing, they are controlling, they are just going through whether there is any wastage of resources or they have to minimize the cost of production also. Then quality control. Quality should be maintained throughout, because if there is a change in the quality, it may create a bad impact on your production or on the name of your company. Then comes control expenditure. Production is being done, but the extra expenditure which are being raised in the name of production, that should be controlled, or we can say that should be reduced. Minimum reduction should be there. The last is variation and simplification. So for this production, continuously some varieties, some variations, changes should be there, and a simplification of production should be there. Means whichever product is being produced, that should be simplified in a way that it should reach to the wider range of the people. Understood? So this is the last topic of chapter number 1, nature and significance of management, and this is the functional area of management. As I had completed this chapter, please go through my all videos of this chapter number 1. Please take the screenshot. Don't forget to like, share and subscribe my channel, that is VD's Shiksha, and please give your valuable comments to my channel, that is VD's Shiksha. Okay.